جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مرحبا. مصطفیٰ سیزن 12 کا یہ فائنل ہے. یکم ربیع الاول سے آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں. آج 12 ربیع الاول دن بھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتے ہوئے گزاری ہیں, اور اللہ کرے آج کے دن کے صدقے میں ہمارا جو اگلا پورا سال ہے وہ خوشیوں سے بھرپور ہو انشاءاللہ. چونکہ ظاہر ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. ابھی 12 ربیع الاول کا دن ہم نے گزارا ہے. آج یہ سیکنڈ راؤنڈ, پہلا راؤنڈ آپ نے دیکھا سنگ سنگ نعت رنگ ہے یہ. اس میں ایک کلام سے آغاز ہوگا جو کہ کنٹیسٹنٹ کو آ کے مکمل کرنا ہوگا. وہی بات بنیادی اس میں کرائٹیریا اسکیل کا ہے کہ اسی اسکیل پہ شروع کرتے ہیں نہیں, اور باقی ظاہر اوور آل تاثر اور پڑھنے اس کے اپنے نمبرز ہیں, لیکن بنیادی کرائٹیریا اسکیل کا ہے. تو صدیق بھائی آپ بتائیں, طارق مسعود, ارسلان غوری اور ارسلان اقبال میں سے ہم کس سے آغاز کریں؟ آپ حکم کیجئے. میرا خیال ہے طارق مسعود سے شروع کریں. آئیے طارق, آئیے بسم اللہ. سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی, بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں اٹھایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, نقش روئے محمد بنایا گیا. واہ واہ, کیا کہنے, کیا بات ہے. اور سلمان بھائی نے ظاہر ہے بلکہ ایک دم جیسے ہی جب کلام چلا تو ایک دم ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ بہت بہت درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سرکار کا کلام, سرکار کی نعت ان کی پہچان ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ بہت درجات بلند فرمائے. سب دعا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن ہے, آمین, اللہ تعالیٰ درجات کو بہت بلند فرمائے. آمین انشاءاللہ. تو سلمان بھائی نے تو ظاہر ایک بہت خاص ایک کیفیت کے ساتھ اس کلام کو سنا, اور منظور الکونین صاحب کیا بات ہے, کیا کیا کہنے. وہ جو کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے, نام ہی ایک استعارہ ہے. واہ ماشاءاللہ. تو کیا کہیے گا سلمان بھائی آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسکیل ٹھیک رکھا, لیکن سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کے نہیں لے کے کچھ روشنی, لے کے کچھ روشنی, بزم کون و مکان کو سجایا گیا. تو اسکیل وائز تو ٹھیک تھا, لیکن اس الفاظ کو بھی ٹھیک کر لیں. تھینک یو. ویسے آپ کا یہ نعت خوانی کا سفر کتنا والد صاحب کے ساتھ رہا یا نہیں رہا کیا؟ بچپن سے ہی یار وسیم بھائی,
मैं तो अवाइल में ही पढ़ना शुरू किया और सुबह फजर की नमाज के बाद दोनों भाइयों को अच्छा। खड़ा करते थे और तिलावत कलाम मजीद की और नात, हाँ? नात एक एक अच्छा, शेर सुनते अच्छा। थे। छोटे छोटे हम लोग तो रेडियो पे लगनी, भैया अल फलाह प्रोग्राम होता था, उसमें इनकी नात लगनी हाँ हाँ। और फिर वो रेडियो पे हमने सुननी, और फिर तैयार होना स्कूल के लिए और फिर जाना। अच्छा 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 अच्छा। वो और ये मश्क कितने अरसे जारी रही? ये नक्श है, ये नात जो है ये हमारी इब्तदाई सबसे पहली यानी नात ये है। नात सुनते ही वो सारी यादें, वो सारा बिल्कुल, माहौल, वो सारा जमाना बिल्कुल, आपके जहन में आता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तर्जमा है, इन्नी अहबाब, अल्लाह को मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर में से एक नूर पैदा किया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह। तो मार्का आरा कलाम, और इसमें जितनी मजबूती इस कलाम में है, अब मैं कहता हूँ कि नात को तकवीत बख्शी प्रोफेसर करम हैदरी के इस कलाम ने। वाह वाह। और जहाँ से एक मेयार जो है वो नात का सेट होता है कि यार मुकाबला है। अगर आपने कई दफ़ा देखा होगा कि उन्होंने कभी मेयार पे सौदा नहीं किया सही। कि मैं सुभान अल्लाह, लोगों की सुभान अल्लाह वाह वाह के लिए नात के मेयार को नीचे करूं। वाह वाह वाह। नहीं। हाँ, क्या बात है, कहते यार मेरे आका का बहुत ऊंचा मकाम है। क्या बात है। तो फिर लफ्जों को ढूंढ के लाओ, जब ढूंढने जाओगे तो वो हाथ बांध के आगे सामने आएंगे कि मुझे हुजूर की नात के लिए चुन लो। हाय 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 हाय, उनका एक अपना मेयार था। क्या बात है। वो अल्लाह ताला इस नात के सदके उनकी कब्र को बुका नूर इलाहे आमीन, इलाहे और आमीन उनके इंशाअल्लाह। दर्जात बुलंद करके उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इलाहे आमीन। बहुत दिल से बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। जनाब कारी साहब। सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को ख़ास अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, इलाहे आमीन, इलाहे अल्लाह आमीन ताला इनको इंशाअल्लाह। सब्र अता फरमाए। और जहाँ तक तारिक मसूद का है तो इन्होंने माशाल्लाह स्केल को बरकरार रखा, उसी तरह उन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, अच्छी आवाज़ में पढ़ा है और बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया है माशाल्लाह से। सिद्दीक भाई। माशाल्लाह देखें, इतने बड़े सनाखा को सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह हमने एक साथ वक्त गुजारा है हाँ 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 उनके साथ। ये तो बहुत छोटे थे। हाँ, सही। पीटीवी के ज़माने में हम साथ प्रोग्राम किया करते ओके, थे, ओके। महफिलों में पूरे पाकिस्तान में। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उनका एक जो रौब था ना पढ़ने में, आवाज में ऐसा दबदबा है। दबदबा, हाँ हाँ। वो देखकर हमें पुराना वक्त याद आ और वो गया। दबदबा नात के पहले जुमले से ही पता चलता है ना, जब उन्होंने शुरू किया सबसे पहले वहीं से वो एक है ना, बस वो जो एक करते हैं तासुर ना, है तो पहले एक- जुमले में। हाँ, एक कैफियत। लेकिन ये शहजादे ने भी माशाल्लाह उसी स्केल को बरकरार रखते हुए सही। काफ़ी हद तक कोशिश की ठीक। कि उस तासुर को कायम रखे, सही। और कायम रखने की पूरी कोशिश की है। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। आपने रुला दिया माशाअल्लाह एक अजीम हस्ती को देखकर कि दिल भी कि यार हमने इनके साथ वक्त गुजारा, और क्या अजीम सनाखान रसूल थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया तारिक मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान इकबाल आइए, अरसलान इकबाल को बुलाएं। अरसलान आइए, आइए अरसलान इकबाल साहब आइए, वाक़ कैंट से कलाम सुनिए और फिर मुकम्मल कीजिए इंशाअल्लाह। ऐसा कोई महबूब हाय हाय। न होगा, न कहीं है बैठा बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है। हर एक को
का तो दरबान जिब्रील अभी है बिजबरील अमी है जिस दर का तो दरबान बिजबरील अमी है सा कोई महबूब न होगा न कहीं है वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सिद्दीक भाई आप बताइएगा फिर। माशाल्लाह मोहम्मद आजम चिश्ती रहमतुल्लाह। हाँ क्या बात है, हसान पाकिस्तान। वाह वाह, हाय हाय। बस जैसा उन्होंने पढ़ा है इनको माशाल्लाह माशाल्लाह उसको उन्होंने उस टेम्पो को कायम भी रखा और बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको निभाया सही, है ना। आजम चिश्ती साहब को पढ़ना और मंजूरुल कौनैन साहब को पढ़ना कोई आसान नहीं सही है, सही, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह अच्छी कोशिश थी। अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छी कारी कोशिश साहब। की। माशाल्लाह आज़म चिश्ती साहब का जो पढ़ा हुआ कलाम है इन्होंने माशाल्लाह उसको बड़ी अच्छी तरह से उसका स्किल को बरकरार रखा और उसके साथ ही साथ पढ़ा है इन्होंने माशाल्लाह, और बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। एक लफ्ज़ है चटाई, ठीक है, हाँ, जिसको आप सही कर लो थोड़ा सा। चिटाई लेकिन वैसे चिटाई का ये है। चूँकि जो राउंड है ये तो स्केल को करने का है ना, बरकरार रखने का, तो उसके लिहाज से आपने बहुत अच्छा पढ़ा। ये जेर जबर का थोड़ा सा ये मैंने भी नोट किया था, समझे ना। तो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। आज़म चिश्ती साहब को अल्लाह ताला उनकी क्या मग़फ़िरत बात फरमाए। है, क्या इलाही आमीन इंशाल्लाह। बहुत बड़े नातवान। बहुत कमाल आपने पढ़ा माशाल्लाह। स्केल का चूंकि राउंड था, स्केल भी बिल्कुल ठीक था। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मार्का आरा कलाम जो पूरी दुनिया पे जिसको दुनिया ने सुना भी और पढ़ा भी, आपने बड़ा अच्छा इसको पढ़ा। ऐसे लगा था अरसलान करीमी से अरसलान चिश्ती पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, शुक्रिया। अरसलान चिश्ती कलाम पेश कर रहे थे। अब आएंगे अरसलान गौरी हैदराबाद से। आइए जनाब, आइए। आ गए क़ल्ब हैरान की तशकी वहीं रह गए दिल वहीं रह गया जाम वहीं रह गए खामोशी दिल पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद और सलाम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद और क़याम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वहीं रह गए। जी कारी साहब। माशाअल्लाह ये अब सईद हाशमी साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने जिस अंदाज में पढ़ा है, इन्होंने स्केल तो ज़ाहिर है कि उनके लिहाज से इन्होंने पढ़ा है। और फिर वही जो हमेशा इनकी बात कर रहे थे, मेल फीमेल वॉइस वाला की आवाज की कैटेगरीज पे अलग है इनकी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर भी इन्होंने उसको स्केल तो अपने एतबार से बिल्कुल अपने एतबार बिल्कुल से सही नहीं बरकरार रखा। मेरा ऐसे ही ये- सलमान में बिल्कुल सही। माशाअल्लाह। मेरा ये ख्याल है, देखें वो एक बड़ी आवाज़ थी, हाँ, ये एक बच्चे की ऐसा आवाज़ ही, ऐसे ही, हाँ, हाँ। इसके स्केल को
ये इन्होंने निभा तो लिया, लेकिन इसी कलाम को ये कितने ऊंचे लेवल तक पढ़ सकते हैं, ये हमें इनको एक मौका देना चाहिए। मेरा ये मशवरा है, अगर दोनों जज साहिबान जी जी बिस्मिल्लाह चलें, बिस्मिल्लाह। है, मेरा ये इससे ऊपर पढ़ सकते हो थोड़ा सा, इससे तो थोड़ा आप ऊपर अपने यानी वैसे ही पढ़ दो इस कलाम को, इसी वैसे ही कलाम पढ़ो। को अपने अंदाज में इसी जैसे कलाम भी को यानी अपने जिस भी अंदाज स्केल पे में- जैसे ये अपने अंदाज में पढ़ो। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब बहरा के तस्की वहीं रह गए, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गए, खम से दर पे अपनी जबी रह गए। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सूफ़ो आफरी रह गए, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गए, खम से दर पे अपनी जबी रह गए। जज़ाकल्लाह। हाँ जी सही। लेकिन सर आपने पहले भी कहा कि यानी वो स्केल उन्होंने मैच कर लिया था वो तो उसमें। मैच कर लिया अब था, चूंकि लेकिन- उनकी उम्र की वजह से उनकी आवाज की कैटेगरी डिफरेंट है। जी हाँ, जी हाँ, इसके आसपास इसी वजह उसको से। थोड़ा मौका दिया ये कि वो हमने जसारत की के सही। थोड़ा सा बच्चे को अगर अपने लेवल पे पढ़े ये तो, सही। लेकिन अच्छा पढ़ा। माशाअल्लाह। सलमान भाई यानी- बिल्कुल ठीक ठीक है। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सलाम, बहुत शुक्रिया। सो यूं हमारा ये दूसरा राउंड अपने अख्ताम को पहुंच गया। 2 राउंड्स हो गए हैं फाइनल के। हमने आपसे कहा था कि आज एक सरप्राइज भी है और फिर हमने आगे जाके आपको बताया कि वो सरप्राइज एक राउंड की सूरत में है। वो सरप्राइज राउंड क्या है? अगर ये मामूल का मुकाबला होता तो अभी हम नताइज की तरफ बढ़ते, लेकिन नहीं, अभी एक राउंड बाकी है। एंड हु नोस, चूंकि वो एक सरप्राइज राउंड है तो क्या पता उसमें कोई बहुत ही ओवर परफॉर्म कर जाए, कोई अंडर परफॉर्म कर जाए और नतीजे पर असरअंदाज हो जाए राउंड, बिल्कुल ये मुमकिन है। तो वो राउंड क्या है, ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 के आखिरी लम्हात हैं। ये हमारा तीसरा राउंड है, ये हमारा सरप्राइज राउंड है। ये मामूल से हटकर है क्योंकि ये मुकाबला ज़ाहिर है, ये एपिसोड मामूल से हटकर है। तो इस राउंड में क्या है साहब? इस राउंड में ये है कि ये मेरे हाथ में इस वक्त तकरीबन 10 पर्चियां हैं इस वक्त मेरे हाथ में। अब इन 10 पर्चियों में क्या है? इन 10 पर्चियों में या तो किसी कलाम का टाइटल लिखा हुआ है, किसी भी कलाम का, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, फॉर एग्जाम्पल, और या फिर किसी नात खां या किसी शायर का नाम लिखा हुआ है। अब होगा ये कि मैं जज साहिबान के पास जाऊंगा एक एक करके, और मिसाल के तौर पे मैं सलमान भाई से कहूंगा कि वो अरसलान के लिए कोई एक पर्ची निकालें। जो भी पर्ची निकालेंगे सलमान साहब अरसलान के लिए, उसमें अगर किसी कोई कलाम लिखा हुआ होगा, मसलन हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, तो वो कलाम सुनाएंगे। और उसके बजाय अगर वहां पर किसी नात खां का नाम लिखा होगा, मतलब लिखा होगा सिद्दीक इस्माइल, तो सिद्दीक इस्माइल साहब का कोई कलाम सुनाएंगे वो। और या किसी शायर का नाम लिखा होगा, आजम चिश्ती लिखा होगा, तो वो आजम चिश्ती साहब का कोई लिखा हुआ कलाम सुनाएंगे। ये 3 मुमकिनात है इन 10 पर्चियों में। ये समझ आ गई? ठीक है, ये क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है, घबराना तो नहीं आपने? अच्छा ठीक हो गया जनाब अली। तो मैं करने लगा इस मुकाबले का बाकायदा आगाज, और वो इस तरीके से कि यहाँ सलमान साहब बैठे हैं। मैं पहले सलमान साहब के पास जाऊंगा, वो अरसलान करीमी साहब के लिए कोई एक पर्ची निकालेंगे, उस पर्ची पे किसी
جس طرح میں نے بتایا کلام ہوگا تو کلام سنائیں گے، ورنہ شاعر یا نعت خواں کا نام ہوگا تو ان کا کلام سنائیں گے. یہ ہمارا ہے سرپرائز راؤنڈ مرحبا مصطفیٰ سیزن 12 کے فائنل کا. یہ میں نے آپ کے سامنے ساری پرچیاں رکھ دی ہے، کوئی بھی ایک پرچی اٹھا لیجئے سلمان بھائی اور ارسلان کریم آپ سنیے، بتائیے کہ کیا لکھا ہے. مائک پہ بتائیے گا سلمان بھائی. جناب قاری زبید رسول. قاری زبید رسول صاحب کا کوئی کلام سنائیں گے. ارسلان کریمی صاحب، یہ ہم نے ارسلان صاحب کو ابھی بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے قاری زبید رسول صاحب کا کوئی کلام سنا. جناب بسم اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گل چیتا خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گل چیتا کس منہ سے بیان ہو، تیرے اوصاف حمیدہ. یوں دور ہوں طائب حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں، تیری گل چیتا. بتائیں سلمان صاحب. جی ماشاءاللہ قاری زبید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتہائی خوبصورت پڑھا ہوا اور مشہور زمانہ کلام ارسلان نے بڑا اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی آواز میں سوز پیدا کرے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. قاری صاحب بڑا خوبصورت کلام آپ نے یہ پڑھا ہے اور مجھے تو ویسے بھی بہت پسند ہے یہ کلام. اور حفیظ طائب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے پڑھا بھی خوب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکھنے والا بھی اور پڑھنے والا صحیح دونوں ہی آج ہمارے
मौजूद नहीं है। हाँ, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। कारी जुबैद रसूल बड़े धीमे अंदाज में पढ़ा करते थे, हाँ हाँ, बहुत ठहराव के साथ, अच्छा, और महफिल पर एक ऐसी कैफियत तायब करते थे। इन्होंने इसको खूब निभाया है माशाअल्लाह। और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है। अल्लाह ताला इनके दर्जात को भी बहुत बुलंद फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। जनाब कारी वैसल कासमी साहब, ये कुछ पर्चियां आपके सामने रखी हैं, आप इनमें से कोई पर्ची उठा लीजिए। अरसलान, ये आपके लिए, ठीक है अरसलान गौरी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। खिला दिया, यानी कलाम आ गया इनको, ठीक। इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम। उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीब वाह, से गर कतरा किसी ने मांगा, शाबाश, बहुत अच्छे। मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। हाँ जी सलमान साहब। जी बहुत अच्छा, और बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ा अच्छा अंदाज, और मुस्तफ़ा ने दुर बेबहा दिए, दुर्बे नहीं है, हाँ, ठीक है, क्लियर इसको करना है। मुस्तफ़ा ने दुर बेबहा दिए हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, वर्ल्ड। मेरे अबीब से गर कतरा किसी ने मांगा है ना वो। हाँ, वो अक्सर बच्चे पढ़ते हैं दुर बेबहा, हाँ दुर्बे, जैसे दुर्बे का लफ्ज है सर। दुर दुर बेबहा दिए, बेबहा दिए। दूर एक पत्थर है, वो पत्थर है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, इसको जरा सा समझ लेना, है ना। दुर बेबहा नहीं है, हाँ दुर बेबहा दिए है, हाँ, दुर बेबहा दिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन रचा के पढ़ा है। सही। हाँ जरा, आप मुतमईन हैं? हाँ मुतमईन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फाइनल है, ये हाँ जाहिर है, जाहिर है, लेकिन बड़ी अकीदत से पढ़ा है, बड़ी अकीदत से अपना टास्क पूरा किया। हाँ है। टास्क अपना पूरा किया, जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी थी वो पूरी की है। कारी साहब। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, और अच्छी तरह से मतलब कोशिश की इन्होंने अच्छा पढ़ने की इसको, और पढ़ा भी अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सो आज के इस मुकाबले के, बल्कि इस साल के मरहबा मुस्तफ़ा सीजन के हम आखिरी सना खां, यानी आखिरी नात सुनते हैं हम किसी सना खां की जानिब से, और वो किसने पढ़नी है तारिक मसूद साहब ने। कौन सी पढ़नी है
یہ صدیق اسماعیل صاحب بتائیں گے کیونکہ ان کے آگے کچھ پرچیاں رکھی ہوئی ہیں. کوئی ایک پرچی صدیق بھائی اٹھا لیں گے اور وہ پرچی کھول کے پڑھ دیں گے تاکہ ذرا معلوم ہو جائے کہ یہ کس کے حصے میں یہ آتی ہے پرچی. یہ آپ کی جناب صدیق بھائی یہ آپ. اے میری نگاہوں میں اب میری اب میری نگاہوں اب میں. میری نگاہوں میں ہاں جی. خالد محمود صاحب کا کلام. جناب جناب. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں تماشا نہیں کوئی، سرکار کا اب جلوہ. میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی صدیق بھائی. یہ نعت بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر، بالکل بالکل. اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑے جم کے پڑھی ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، آپ نے پڑھا ویسا نہیں کوئی، لیکن بہرحال آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور بغیر تیاری کے پڑھ لینا یہ بڑی بات ہے. تو آپ نے اچھا پڑھا اس کو، ماشاءاللہ. سر اس راؤنڈ میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا، بڑے جم کے پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور بڑی ڈوب کے پڑھا ہے بڑے اچھے طرح ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. جی طارق مسعود آپ مکمل نعت خوان ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ سرپرائز راؤنڈ تھا اور اچانک سے اس طرح سے ایک نئی نعت کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑا اچھا امپرووائز بھی کیا اور سر کا تاثر بھی دیا اور بڑا اچھا پڑھ لیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب. طارق مسعود صاحب بھی اپنا کلام پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے تمام ثنا خواں حضرات جو فائنلسٹ سے تمام کے تمام وہ سارے راؤنڈز کے مراحل طے کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. اب آپ نے کچھ نہیں کرنا، دعا کرنی ہے، انتظار کرنا ہے. اب جو ہونا ہے وہ جو سامنے جج صاحبان نے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے. سو اس مرحلے پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے آخری راؤنڈ کے ساتھ، جس میں انشاءاللہ انعامات، اسناد، تحائف اور سب سے بڑھ کر نتیجہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کا انشاءاللہ. بریک کے بعد آتے ہیں.